Good morning, friend. Today I am going to discuss with you one of the important topic that is the sample and its types. Now, from figure you have to observe that sample is a some part of population. Why sampling? To study the whole population. A major reason studying the sample rather than the whole group is that the whole group is so large that study is not feasible, or when you conduct the research about the group of people, it is rarely possible to collect the data from every person in that group. Instead, you select the sample. Sample is the group of individuals who will actually participate in the research. Example: college student in CA. If we study the whole population, we don't need to go through the sampling procedure. Many research is based on the sample of the people, the concept of the sampling. Let us take very simple example to explain the concept of sampling. Suppose if you want to estimate the average age of student in your class, there are two ways of doing this. The first method is to contact the all students in the class, find out their age and add them and divide this by the number of students. That is the average calculating method. Second method is select the few students from the class and ask them their age, add them up and divide the number of students you have asked. अगर सिंपल भाषा में समझा जाए सैम्पलिंग क्या है। सैम्पलिंग ये है एक होल पॉपुलेशन का एक छोटा पार्ट। जैसे मैं एक एग्जांपल बोलता, जैसे हम लोग का घर में क्या होता है, जब मम्मी खाना बनाने के लिए जाती है तो चावल पका या नहीं पका उसके लिए क्या करती है, एक दो दाना चावल निकाल के देखती है, उसको दबा के देखती है, और जब वो चावल दब जाता है तो मम्मी क्या समझती है, पूरा चावल पक गया। यहाँ पे जो पूरा चावल जो है वो क्या है, एक्चुअली पॉपुलेशन, और एक दो दाना जो निकाल के देखती है कि ये पका या नहीं पका वो है सैंपल। तो सैंपल जो है क्या है, वो एक पार्ट है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मतलब क्या हो जाता है, एज अ होल। अब आपको एक चीज समझ में आना चाहिए, अगर हम एक चावल से अनुमान लगा सकते हैं कि पूरा चावल पक गया, उसी तरह से हम कुछ सैंपल लेके हम अनुमान लगा सकते हैं कि पूरा पॉपुलेशन ओवरऑल इसी टाइप का होगा। इसलिए इसलिए जरूरी होता है कि हम कोई भी रिसर्च वर्क करें तो हम होल पॉपुलेशन को कवर अप नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम कुछ पार्ट लेके उसको हम होल में डिफाइन कर सकते हैं, उसे बोलते हैं जनरलाइजेशन। तो कोई भी रिसर्च का मेन मकसद क्या होता है, जनरलाइजेशन करना, मतलब जो इस चीज यहाँ पे लागू है वही सब जगह लागू होगा। सैम्पलिंग टर्मिनोलॉजी, W.G. Cochran says that sample is an element of fact. Sample are only approximation. Sampling is based on the study of probability and stochastic process. Therefore, sampling is the process of selecting a few from a bigger group to become a basis for estimating or predicting the prevalence of an unknown piece of information, situation or outcomes regarding the bigger group. तो सैम्पलिंग क्या है, एक छोटा पार्ट है पॉपुलेशन को, और छोटा पार्ट ही क्या करता है, होल पॉपुलेशन को जनरलाइज करता है। जैसे देखिए, द क्लास फैमिली लिविंग इन द सोसाइटी इलेक्ट्रोड फ्रॉम व्हिच यू select your sample are called population or study of population and usually denoted by letter capital N. The number of students, families or electoral from which you obtain the required information is called sample size, is usually denoted by the letter small n. The way you select the student, family or electoral is called sampling design or sampling strategy.
Each student, family, electoral that becomes the basis for the selecting your sample is called sampling unit or सैम्पलिंग एलिमेंट। अब देखिए तो सैंपल का जैसे आज के दिन में क्या होता है, कहीं भी इलेक्शन होता है तो क्या होते हैं, प्री पोल में कौन सा पार्टी जीतने वाला है, तो उसमें क्या बोला जाता है कि मैंने 10,000 सैंपल लिया है। लेकिन एक्चुअली अगर कोई भी जगह का आप अनुमान लगाए, जैसे वेस्ट बंगाल का इलेक्शन अभी चल रहा है, तो वेस्ट बंगाल में क्या कहता है, जब सर्वे किया गया, जैसे कोई भी कंपनी सर्वे किया, क्या वो ईच एंड एवरी पीपल को गया, नहीं गया। उसने क्या क्या कुछ 10,000 20,000 पॉपुलेशन को सेलेक्ट किया, उस पॉपुलेशन से उसको जनरलाइज किया, और जनरलाइज करने के बाद उसने बोला इस पार्टी जीत रहा है और ये पार्टी हार रहा है। तो जो 10,000 जो पॉपुलेशन लिया आउट ऑफ 6 करोड़ पीपल, तो 10,000 जो क्या हो गया, सैंपल हो गया, और जो 6 करोड़ था वो क्या हो गया, पॉपुलेशन हो गया। और जो जिस अनुसार वो सेलेक्ट करते हैं साइज ऑफ सैंपल, उसको बोलते हैं सैंपलिंग डिजाइन। A list of identifying the each student, family, electoral in the study population is called sampling frame. Sample design. Sample design refers to the plan and method to be followed in selecting the sample from the target population and estimation the technique formula for computing the sample statistics. These statistics are estimates used to infer the population parameter. The estimate arrived at from sample statistics are called population parameter or population mean. Sampling error is any type of bias that is attributed to mistake in either drawing the sample or determining the sample size. The measure of population are termed as parameter. The measure of the sample is known as statistics. कभी कभी नेट वगैरह में क्वेश्चन पूछा जाता है मेजर ऑफ पॉपुलेशन को क्या बोला जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पैरामीटर। द मेजर ऑफ जब सैंपल आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, स्टैटिस्टिक्स। और सैम्पलिंग एरर क्या है, सैम्पलिंग एरर किसे बोलते हैं, जब हम कोई भी सैम्पलिंग करते हैं तो क्या होता है, एक अपना बायसनेस के कारण कभी कभी एरर हो जाता है, या कैलकुलेशन करने का सैंपल साइज कैलकुलेशन करने समय एरर आ जाता है, उसे ही बोलते हैं सैम्पलिंग एरर। टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग आर जनरली टू टाइप्स। एक सैम्पलिंग होता है विथ और विदाउट रिप्लेसमेंट। रैंडम सैम्पलिंग कैन बी selected using the two different systems. First one, sampling without replacement and sampling with replacement. Suppose you want to select a sample of 20 students out of 80 students. First student is selected out of the total classes and the probability of selection for the first student is a probability 1/80. मतलब एक student का select करना है out of 80. When you select the second student, then only the 79 is in the class. Then probability of selection of the second student is not 1/80, क्योंकि population तो एक तो select हो चुका है, तो but 1/79. The probability of selecting the next student is 1/78. By the time you select the 20 student, the probability of his her selection is 1/68. This type of sampling is called sampling without replacement. But this is contradictory to our basic definition of randomization. That is, each element has equal and independent chance of selection. In the second system, sampling with replacement, the selected element is replaced in the sampling population if it is selected again. If it is discarded and next one is selected. If the sampling population is fairly large, the population of selecting the sample element is twice at fairly remote. Now एक हिंदी भाषा में इसको समझा जाए तो सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, अगर एक जैसे हमने किसी आदमी का 5 आदमी में किसी एक को सेलेक्ट किया,
मैंने पहले एक को सेलेक्ट कर दिया, तब हमारे पास कितना बचा है 4। तो अब 4 में फिर एक को सेलेक्ट किया तो हमारे पास कितना बचा है 3। जब हम सेलेक्ट करके फिर उसी में नहीं डालेंगे तो उसे बोलेंगे सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। और दूसरा टाइप, मैंने जैसे 5 आदमी को लिया, एक को सेलेक्ट किया, जैसे ए को सेलेक्ट किया, फिर उस सिलेक्शन को फिर से उसी में डाल दिया, फिर नेक्स्ट हमने चूज किया, नेक्स्ट में भी बी आ सकता है और ए आ सकता है, तो उसको बोलते हैं सैंपलिंग विथ रिप्लेसमेंट। जनरली हमें जब पूछा जाता है तो हम दो टाइप का सैंपलिंग का डिस्कस करते हैं, एक प्रोबेबिलिटी, एक नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इज आल्सो नोन एज रैंडम सैंपलिंग। जब प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग आता है उसे क्या बोलते हैं, रैंडम सैंपलिंग और चांस सैंपलिंग। इन दिस sample is taken in a such a manner that each and every unit of population has an equal and positive chance of being selected। मतलब कहना चाहता है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग उसे बोलते हैं जिसमें सबको इक्वल चांस मिले सेलेक्ट होने के लिए। Whereas non-probability sampling is any sampling method where some element of population have no chance of selection. These are sometimes referred to as out of coverage or under coverage, where the probability of selection cannot be accurately determined. It involves the selection of elements based on assumption regarding the population of interest which form the criteria for selection. Hence, because the selection of element is non-random, non-probability sampling does not allow the estimation of sampling error. नॉन प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब इस टाइप का सैंपल है जिसमें सबको हम इक्वल चांस नहीं देते हैं। जो मुझे पसंद है मैंने उसको सेलेक्ट किया, जो मुझे पसंद नहीं है उसको मैंने सेलेक्ट नहीं किया। जैसे मुझे अलीपुरद्वार या कहीं के मुझे सैंपलिंग करना है तो मैंने बंगाल में क्या किया, जो मेरे घर के पास में जितना आसपास के जगह है उसको मैंने सेलेक्ट किया, वही मेरे घर से जो बहुत दूर दूर है उसको मैंने सेलेक्ट नहीं किया। उस टाइप को सैंपलिंग को क्या बोलेंगे, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। मतलब नॉन प्रोबेबिलिटी के सैंपलिंग का सिंपल मतलब में ये समझा जाता है अपने अनुसार, अपने इच्छा, अपने सुविधा, अपना फायदा के अनुसार जब सेलेक्ट करते हैं उसे बोलते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पे डिफाइन करते हैं डिफरेंस बिटवीन द प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इज अ सैंपलिंग टेक्निक इन व्हिच सैंपल from a large population are chosen using the method based on the theory of probability. Whereas non-probability sampling is a sampling technique in which researchers select the sample based on the researcher's subjective judgment rather than the random selection. Example: convenience sampling, opportunity sampling, incidental sampling, grab sampling, haphazard sampling, quota sampling, purposive sampling, judgment sampling, snowball sampling। ये सब क्या है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को दूसरा नाम क्या बोलेंगे, रैंडम सैंपलिंग मेथड। व्हेयरएज नॉन प्रोबेबिलिटी को क्या बोलेंगे, नॉन रैंडम सैंपलिंग मेथड। पॉपुलेशन, तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग पॉपुलेशन इज सेलेक्टेड रैंडमली, व्हेयरएज नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या है, पॉपुलेशन इज सेलेक्टेड आर्बिट्रेरी। इसलिए आर्बिट्रेरी क्योंकि अपने अनुसार सेलेक्ट करेंगे, जो मेरे लाइक, मेरे फायदा, मेरे इच्छा अनुसार काम करे उसी आदमी को सेलेक्ट करेंगे। नेचर नॉन प्रोबेबिलिटी क्या होगा, कंक्लूसिव, व्हेयरएज रिसर्च क्या होगा, रिसर्च इन नॉन प्रोबेबिलिटी को एक्सप्लोरेटरी। Sample. Since there is a method of deciding the sample, the population demography conceivably represent। जब हम क्या करेंगे, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में क्या फर्क है। जब प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग करेंगे वो क्या करेगा, एक पॉपुलेशन को डिनोट करेगा, मतलब उसका जो भी सिलेक्शन होगा वो जनरलाइज होगा। व्हेयरएज नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होगा, हम अपने अनुसार सेलेक्ट करेंगे, मींस सबको इक्वल चांस नहीं देंगे, तो वो क्या होगा, जनरलाइज नहीं होगा। टाइम टेकन, जब भी हम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग करते हैं तो क्योंकि हमें जनरलाइज करना है तो हमारा पॉपुलेशन ज्यादा होगा, अगर पॉपुलेशन ज्यादा होगा तो हमारा क्या होगा,
टाइम टेकन भी ज्यादा होगा। नॉन प्रोबेबिलिटी क्या है, हम अपनी इच्छा अनुसार चलेंगे तो क्या होगा, टाइम हमें कम लगेगा। Result. This type of sampling is entirely unbiased. Hence the results are unbiased to and conclusive. Probability में क्या होगा, result क्या होगा, unbiased होगा, क्योंकि हम सबको chance देंगे। Whereas non-probability sampling, this type of sampling is entirely biased. Hence the results are biased to, rendering the research speculative. Hypothesis. Probability sampling. In probability sampling, there is underlying the hypothesis before the study begins, and the objective of the method is to prove the hypothesis. Whereas in non-probability sampling, the hypothesis is derived after conducting the research. जब भी हम रिसर्च करेंगे, जब हमें कोई भी हाइपोथेसिस को प्रूव करना पड़े, हाइपोथेसिस को प्रूव करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, तब क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग आ जाएगा। जब भी हम हाइपोथेसिस के डिराइव आफ्टर कंडक्टिंग, जब हम रिसर्च कर लेंगे उसके बाद हम हाइपोथेसिस को डिराइव करेंगे कि ये हो सकता है, तो उसे क्या बोलेंगे, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। अब डिफरेंस बिटवीन द नॉन प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग किस किस टाइप का होते हैं। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है क्लस्टर, स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमैटिक एंड सिंपल रैंडम। और नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर में क्या आता है, स्नोबॉल, जजमेंट, क्वेटा, कन्वीनियंस। अब स्टेज ऑफ सैंपलिंग, सैंपलिंग का स्टेज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट स्टेज क्या है, आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द पॉपुलेशन। स्टेप 2 में मैंने दिखा है सेलेक्टिंग द सैंपलिंग फ्रेम। पहले आपको कितना पॉपुलेशन को टारगेट करना है, फिर हम एक सैंपल फ्रेम करेंगे कि इतना पॉपुलेशन का सेलेक्ट करना। चूजिंग द सैंपलिंग मेथड, कौन सा मेथड से हमें इसको सेलेक्ट करेंगे, प्रोबेबिलिटी मेथड से सेलेक्ट करेंगे कि नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद स्टेप 4 में क्या आएगा, डिटरमाइन द साइज, सैंपल का साइज कितना होगा, 500 होगा, 1000 होगा, 200 होगा। नेक्स्ट होगा कलेक्ट द रिक्वायर्ड डाटा। उसके बाद हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चनरी या इंटरव्यू के थ्रू हम डाटा को कलेक्ट करेंगे। मैंने राइट हैंड साइड में लिखा है सैंपलिंग प्रोसेस कंप्राइज द सेवरल स्टेप। कभी कभी क्या होता है, 7 स्टेप में भी बहुत सारा डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट, डिफाइन द पॉपुलेशन, स्पेसिफाइंग द सैंपल फ्रेम। Next, third step is specifying the sample unit. Fourth step is selection of the sampling method. Fifth is determination of sample size. And sixth is specifying the sampling plan. And last one is selecting the sample. अब सबसे पहले मैं डिस्कस करने वाला हूँ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में कौन सा, सिंपल रैंडम सैंपलिंग। The simple random sampling is a method of probability sampling in which every unit has equal non-zero means chance of being selected. Simple random sample, for this each member of population is numbered. Then give the size of the sample is drawn with the help of random number chart. The other way is to do a lottery where all the numbers are small uniform piece of paper. Fold the paper, put them in a container and take out the required lot in the random manner from the container as is done in a kitty parties. It is relatively simple to implement, but the final sample may be missed out in the small group. Advantage, the sample will be free from the bias. Disadvantage, difficult to obtain. Due to its very randomness, freak results can sometimes be obtained that are not representative of the sample. अब देखिए सिंपल रैंडम सैंपलिंग, हम जब भी बच्चे लोग में क्या होते हैं, खेलते हैं तो हम क्या करते हैं, कागज में 5 आदमी का नाम लिख देते हैं और उसको बेंड कर देते हैं और बोलते हैं सेलेक्ट करो। तो उसी में जब एक आदमी जो वो सेलेक्ट करता है तो इसमें क्या होता है, 5 आदमी को बोलते हैं अपने अपने उठाओ, जिसके भाग में जो आएगा उस अनुसार होगा।
जैसे हम कोई भी गेम वगैरह खेलते हैं तो सब अपने अपने अनुसार उठाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, लॉटरी मेथड। तो लॉटरी मेथड में क्या है, सबको इक्वल चांस मिला है। तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग में क्या होगा, सबको इक्वल चांस मिलेगा और सब अपना आप को प्रेजेंट कर सकता है। When a population is finite, can be properly listed, then this method is called systematic sampling. In this type of sampling, the first interval is selected randomly and other are selected using the fixed sampling interval. Systematic random sampling is a method of probability sampling in which define the target population is ordered and sample is selected according to the position using the skip interval. Systematic random sample, it also requires the number to entire population. Then every nth number is selected to constitute the sample. It is easier and more likely to represent the different subgroup. Advantage: can eliminate the other source of bias. Disadvantage: can introduce the bias where the pattern used for the sample coincide with the pattern in the population. Say our population size is x. We have selected the sample size of n. Then next interval that will select here would be a x by n interval away from the first individual. Suppose we began with the person number 3 and we want to sample size of 5. The next individual that will be select would be the interval of 20 by 5, that is the 4. From the third person you have to select it 4, means 7 is a 3 plus 4 and so on. Now अगर आपने सैंपल साइज लिया है, जैसे मैंने यहाँ पे सैंपल साइज लिया है, टोटल यहाँ पे सैंपल कितना है 20 है, तो फर्स्ट मैंने क्या किया 3 सेलेक्ट कर लिया। मैंने फर्स्ट क्या सेलेक्ट किया 3 सेलेक्ट किया। उसके बाद मैंने यहाँ पे टोटल सैंपल साइज कितना है 20 है, 20 को मैंने क्या किया 20 बाय 5, क्योंकि 20 डिवाइड, हमें सैंपल टोटल सैंपल कितना चाहिए 5 चाहिए, लेकिन मैंने सेलेक्ट फर्स्ट कितना किया 3, फर्स्ट नंबर मैंने 3 सेलेक्ट किया है, लेकिन टोटल सैंपल साइज कितना चाहिए मुझे 5 चाहिए। तो मैं क्या करूंगा टोटल डिवाइड बाय जितना मुझे सैंपल चाहिए उससे भाग करूंगा। जैसे यहाँ पे क्या है टोटल कितना है 20, मुझे सैंपल टोटल नंबर ऑफ सैंपल कितना चाहिए 5, तो मैंने क्या किया 20 डिवाइडेड बाय 5, तो क्या आ गया 4। तो फर्स्ट मैंने 3 सेलेक्ट किया था, 3 के बाद 4 कितना आएगा 1 2 3 4, मतलब 3 के बाद 4 मतलब 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 4 15, 15 प्लस 4 19। तो हमारा सिस्टमैटिक सैंपलिंग में क्या होता है फर्स्ट आपको एक सेलेक्ट करना पड़ता है, उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है टोटल साइज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल यू रिक्वायर्ड। मतलब टोटल साइज अगर 30 है या 50 है तो डिवाइड आपको 10 से करना है, तो अगर 50 डिवाइड बाय 10 करने से क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। तो अगर मैंने फर्स्ट सैंपल 2 लिया है तो सेकंड सैंपल क्या आएगा 2 प्लस 5 मतलब 7, फिर 7 के बाद फिर क्या करेंगे 5 ऐड करेंगे तो 12, 12 प्लस 5 17। तो हम जो सैंपल साइज डिवाइड करने के बाद आता है उसको हम क्या करेंगे फर्स्ट सैंपल सेलेक्ट साइज से उसको ऐड करते करते जाएंगे, तो इसे बोलते हैं सिस्टमैटिक सैंपलिंग। लेकिन सिस्टमैटिक सैंपलिंग में एक चीज को ध्यान देना पड़ता है, वो है कि हमारा पॉपुलेशन क्या होना चाहिए डेफिनाइट होना चाहिए, मतलब नोन होना चाहिए हमारे पास कितना पॉपुलेशन है। अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, लोअर क्लासेस। लेकिन मैंने जब पॉपुलेशन को फाइंड आउट किया तो मुझे अपर क्लास 1000 नंबर ऑफ पीपल मिले, अपर मिडिल क्लास मुझे 500 पीपल मिले, मिडिल क्लास हमें 400 मिले, लोअर मिडिल क्लास हमें कितना मिले 2000 मिले और लोअर क्लास कितना मिले
1500 मिले। अगर मैं डायरेक्ट सबको एक ही बार ले लेता हूं तो क्या होगा, तो हमारा लोअर क्लास ज्यादा हो जाएगा, अपर क्लास कम हो जाएगा। तो इसके अनुसार हमने क्या किया, सबसे इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव किया। सबसे मैंने 5% लिया, सबसे मतलब 5%, 1000 में मैंने 5% लिया, तो इसका मतलब सैंपल साइज कितना हो गया 50। 500 में मैंने 5% लिया, उसका सैंपल साइज क्या हो गया 25। और 400 में मैंने कितना लिया 5%, फिर 20, फिर 2000 में 5% लिया तो 100, एंड 1500 में 5% लिया तो 75। तो इससे क्या हुआ कि जो भी ग्रुप हो, लेकिन वो कितना परसेंट ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 5% रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब सबको इक्वल चांस मिला है। लेकिन किस टाइप से, स्ट्रेटिफाइड, मतलब अकॉर्डिंग टू द ग्रुप। इंडिविजुअल ग्रुप को जब हम क्या करते हैं, स्ट्रेटिफाइड ग्रुप को पहले प्रेजेंट करते हैं, और इंडिविजुअल ग्रुप से अगर इक्वल अमाउंट पे हम सैंपल लेते हैं तो सैंपल क्या करेगा, होल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। इसे भी बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे क्लस्टर। क्लस्टर सैंपलिंग को कभी भी बोलते हैं एरिया सैंपलिंग। This method is used when the population is a finite. List of all unit population is not available, and population is selected over a wide geographical area. Individuals have to study as a group. Individual units cannot be sampled due to administrative reason. In a cluster, you use the sample group of the population as the sampling unit rather than the individual. The population is divided into the subgroups known as cluster, and whole cluster is randomly selected to be included in the society. We have divided our population in the 5 clusters. Each cluster consists of 4 individuals, and we have taken the 4th cluster in our sample. We include the most cluster as per our sample size. यहाँ पे क्या बोला है, पॉपुलेशन क्या जब इनफाइनाइट हो जाए, जब पॉपुलेशन फाइनाइट हो, हमें मालूम है इस एरिया का पॉपुलेशन 5 करोड़ है, लेकिन हम 5 करोड़ को तो सैंपलिंग नहीं कर सकते, हम 5 करोड़ के पास जा भी नहीं सकते। जैसे मैं एग्जांपल बोलना चाहता हूँ, जैसे मुझे जानना है कि बीएड कॉलेज में कितने टीचर है, तो ऑल इंडिया में कितना बीएड कॉलेज, 16,000 बीएड कॉलेज है, 16-15,000 जैसे बीएड कॉलेज है। क्या मेरे पॉसिबल होगा कि मैं सब कॉलेज में जाऊं और डाटा कलेक्ट करूं? पॉसिबल तो नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, उसको एक फाइनाइट कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम सबको सब पॉपुलेशन को क्या करते हैं, एक यूनिट में डालते हैं। मैं जैसे वेस्ट बंगाल से एक डिस्ट्रिक्ट लेना है, फिर मुझे आसाम से एक डिस्ट्रिक्ट लेना है, उसके बाद मुझे बिहार से एक डिस्ट्रिक्ट लेना है, उसी तरह मुझे मध्य प्रदेश से एक डिस्ट्रिक्ट लेना। इसी तरह से हम सब डिस्ट्रिक्ट से एक एक सैंपल लेंगे, एक एक एरिया में सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम सैंपल को क्या करेंगे, एक जगह रखेंगे, उसके बाद हम सेलेक्ट करें। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, पहले 1 2 3 4, एक जैसे ये एक डिस्ट्रिक्ट आ गया, फिर उसके बाद आ गया 5 6 7 8 9। सिमिलरली यहाँ पे क्या गया, हमने क्लस्टर कर दिया एरिया वाइज, हम इसको किस में डिवाइड कर दिया, 5 एरिया में डिवाइड कर, एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3, एरिया 5, एरिया 4 एंड एरिया 5। और इसके अब एरिया जब डिवाइड कर दिया, हम सब एरिया में तो नहीं जा सकते, हम क्या करिए, पहले से हमने 13 को सेलेक्ट कर लिया, फिर हमने रैंडमली 14 को सेलेक्ट किया, फिर रैंडमली हमने 15 को सेलेक्ट किया, फिर रैंडमली हमने 16 को सेलेक्ट किया। उसे ही बोलते हैं क्लस्टर सैंपलिंग। जैसे मैंने होल इंडिया का सर्वे किया, होल इंडिया में कुछ पार्ट लिया, कुछ पार्ट में फिर कुछ पार्ट का भी हमने सैंपल उसके से भी हमने रैंडमली सेलेक्ट किया, उसे ही बोलते हैं क्लस्टर और एरिया सैंपलिंग। नेक्स्ट डिस्कस करने वाला हूं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। यहाँ पे मैंने फिगर दिया है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में क्या है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मैंने ही पहले बोला है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जब भी होता है अपने अनुसार, मतलब अपने इच्छा अनुसार, अपने जरूरत अनुसार, अपने जहां तक मेरी पहुंच है वहीं तक हम कर ले, और अपना फायदा जब भी सोचे। ये जरूरी नहीं है हम सबको चांस देंगे, जो हमें फायदा करेगा हम उसी के चांस से, जिससे जो सर्वे करने जाएंगे, जो डाटा हमें फायदा देगा, हमारे रिजल्ट को फायदा करेगा, उसी डाटा को हम करेंगे, उसी बोलते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में क्या है, कन्वीनियंस सैंपलिंग। जैसे कन्वीनियंस सैंपलिंग में दिखाया गया है
यहाँ पे क्या क्या है, एक सैंपल, दो रिसर्चर है, उसने जो घर के पास जितने आदमी है उसको सेलेक्ट किया, क्योंकि उसको कन्वीनियंस होगा सैंपल लेने में। अगर दूर होता तो उसे जाना पड़ता, मिलता नहीं मिलता, तो उसे बोलते हैं कन्वीनियंस सैंपलिंग। वॉलेंट्री सैंपल, रेस्पॉन्स सैंपल, इसमें क्या क्या, मैंने कुछ आदमी को देखा, तुम जाके यहाँ पे कर दो, तुम जाके यहाँ से सैंपल ले लो, उसे बोलते हैं वॉलेंट्री रेस्पॉन्स सैंपल। पर्पोसिव सैंपल, पर्पोसिव सैंपल क्या है, मैं जैसे मैंने कुछ काम करना है, तो मुझे जानना है कि मुझे बताना है कि इस एरिया में कुछ काम नहीं हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, ऐसा ऐसा जगह जाके ढूंढूंगा जहां पे गवर्नमेंट का काम बचा हुआ है, अभी तक नहीं हुआ है, और उसी एरिया को मैं दिखाऊंगा। जो आजकल बेसिकली टीवी में क्या होते हैं, टीवी आजकल के दिन में न्यूज क्या हो गए हैं, हमारा न्यूज क्या हो गया, नॉन प्रोबेबिलिटी हो गया। जैसे क्या होते हैं, बहुत सारा न्यूज में आप देखेंगे मोदी के, मोदी 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 ही दिखाते हैं, बहुत सारा न्यूज ऐसे होते हैं, क्या दिखाते हैं, ममता 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 ही दिखाते हैं, तो वो क्या हो गया, अपने पर्पज अनुसार, कोई मोदी का भक्त है, कोई ममता का भक्त है, उसे रियलिटी से कोई मतलब नहीं है, उसे बोलते हैं पर्पोसिव सैंपलिंग। स्नोबॉल सैंपल क्या है, ये एक टाइप का चेन सैंपलिंग है। जैसे आपने देखा है ना आजकल चेन मार्केटिंग के बारे में, जैसे आप तीन आदमी को सेलेक्ट करो, तीन आदमी के नीचे तीन आदमी को बोलो, आप तीन आदमी को सेलेक्ट करो, तो उस तरह से क्या होगा, आपको प्रॉफिट होगा, बोलते हैं, जैसे आजकल मार्केटिंग में यूज होते हैं, जैसे एमवाई हो गया, मोदी केयर हो गया, ये सब क्या करते हैं, स्नोबॉल सैंपलिंग यूज करते हैं। Convenience sampling. Convenience sampling is perhaps that easiest method of sampling because participants are selected based on the availability and willingness to take part. Useful result can be obtained, but the results are found to be a significant bias because those who volunteer take the part may be different from those who choose are not, and the sample may not be representative of other characteristics such as age, sex. Note: voluntary bias is a risk of non-probability sampling method. Here, let us say the individual number 4, 7, 12, 15 and 20 want to be part of our sample and hence we include them in a sample. जैसे मैंने यहाँ पे एक फिगर दिया है, उसमें सैंपल कहाँ से है, 1 से 20, लेकिन मुझे मालूम है कि इसमें जो जो 1 से 20 तो मैंने सैंपल लिया, लेकिन मुझे मालूम है अगर मैं 1 के पास जाऊंगा तो वो सैंपल, वो मैं मुझे डाटा नहीं देगा, 2 के पास जाऊंगा तो वो डाटा नहीं देगा, 3 के पास जाऊंगा, लेकिन 4 के पास जाऊंगा तो वो डाटा देगा, तो मैंने 4 को सेलेक्ट किया। दूसरा मैंने 5 देखा, 6 देखा, तो मुझे लगा कि 5 6 तो बहुत दूर है, ऐसा करते 7 को ले लेते हैं, तो 7 को मैंने, इसी तरीका से मैंने क्या किया, जो मेरे कन्वीनियंस, मेरे फायदा अनुसार, जो मुझसे फायदा हो सके, मुझे फायदा हो सके सैंपल कलेक्ट करने में, उसे ही हम क्या बोलते हैं, कन्वीनियंस सैंपलिंग। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कन्वीनियंस सैंपलिंग का। कभी कभी ऐसा होता है ना, हमारे घर में गांव में सर्वे करने में आदमी आते हैं, तो सर्वे करते हैं, तो क्या होता है कि हम तो हमारे बारे में पूछते हैं, आपके घर में कितने आदमी है, हम बोल देते हैं, तो फिर देखते हो पड़ोसी का घर बंद है, अब वो तो फिर उनको पड़ोसी का डाटा लेने के लिए तो कल आना पड़ेगा, तो क्या करते हैं, हम ही से पूछ लेते हैं उसके घर में कितने आदमी है, कितने हैं, तो वो क्या करते हैं, कल आने के चक्कर में आज ही उस डाटा को भर देते हैं। वो डाटा राइट है रॉन्ग है ये उनको कोई नहीं चाहिए, सिर्फ उनको डाटा चाहिए, क्योंकि उनको कन्वीनियंस, आज का काम इधर आज ही खत्म करना है, उसे ही बोलते हैं कन्वीनियंस। Next one is a quota sampling. In this type of sampling, we choose the item based on the predetermined characteristic of the population. Consider that we have select the individual having a number of multiples of 4 of our sample. Example, selection of people on the basis of caste system. ये इंडिया का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, कास्ट सिस्टम। कुछ दिन पहले एक सर्वे आया था, इंडिया में अराउंड 10,000 टीचर का वैकेंसी खाली है। वो किसके लिए, तो बोला गया वो कास्ट सिस्टम के लिए, क्योंकि जो वैकेंसी जिस कास्ट के लिए रहा है वो कास्ट का वहां पे आदमी सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं। जैसे एग्जांपल, कल परसों लोकसभा में
हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिप्रेजेंट किया कि हमारा आईआईटी में इतना पोस्ट खाली है, लेकिन उस पोस्ट को फिलअप करने के लिए आदमी नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि जो आदमी मिल भी रहे हैं उनके पास क्वालिटी नहीं है। लेकिन वो क्यों हो रहा है? क्योंकि कास्ट सिस्टम है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, ओबीसी है, ये सब कास्ट सिस्टम है। और जो कास्ट सिस्टम है तो उसी को सिलेक्ट करना है, तो उसे क्यों बोलते हैं? कोटा सैंपलिंग, judgment or purposive sampling, also known as selective or subjective sampling. The technique relies on the judgment of the researcher when choosing who to ask to participate. Researcher may implicitly the choose of representative sampling suit their needs, specify the approach individual with certain characteristics. This approach is often used by the media when canvassing the public for opinion and call it in qualitative research. Judgment sampling has the advantage of being time and cost effective to perform whistle, resulting in a range of response, particularly used in qualitative research. However, in addition to volunteer bias, it is also prone to error of judgment by the researcher, and the finding whistle being potentially broad will not necessarily be a representative. Now, judgment sampling. यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मैंने सैंपल 1 to 20 है, लेकिन मुझे जज करना है कि इसमें किसी 5 को ही सेलेक्ट करना है। तो मैंने क्या किया, 1 को सेलेक्ट कर लिया, 7 को सेलेक्ट कर दिया, जज 10 को सेलेक्ट कर दिया, 15 को सेलेक्ट कर दिया, 19 को सेलेक्ट कर दिया। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अभी हमारे यहाँ क्या हो रहे हैं, इलेक्शन वगैरह का प्रोग्राम होते हैं, तो आप न्यूज चैनल, बहुत सारे न्यूज चैनल में जाते हो, वहां पे किसको दिखाया जाता है? जो मोदी या जो गवर्नमेंट है उसके बारे में अच्छा बोले। फिर कुछ चैनल में जाते हो, वहां पे क्या दिखाता है? जो उस गवर्नमेंट के बारे में अच्छा हो। ऐसा तो हो नहीं सकता है ना कि जब हम सर्वे लेने जाते हैं, किसी से बात करते हैं, वो सब चीज अच्छा ही बोले, लेकिन हम ऐसा पीपल को भी मिलते हैं जो पीपल उसके बारे में खराब बोले या गवर्नमेंट के बारे में खराब बोले, लेकिन हम क्या करते हैं, उसी पीपल को दिखाते हैं जो पीपल उसके बारे में अच्छा बोले। तो ये क्या हो गया? जजमेंट। जज करते हैं, क्योंकि हम ये चीज को दिखाएंगे तो आगे वाला सबको क्या लगेगा, क्योंकि अरे आज के दिन में पब्लिक का व्यूज ये आ गया है कि अरे ये गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन हमारे अंदर क्या है, एक पर्पोज है। अगर हम खराब चीज को दिखाएंगे तो गवर्नमेंट के बारे में नेगेटिव व्यू आएगा, इसलिए बोलते हैं जजमेंट और पर्पोसिव सैंपलिंग। जैसे क्लास में कभी कभी क्या होता है कि कुछ बच्चे को क्या कहते हैं, वो बच्चे इंटेलिजेंट हो नहीं हो, लेकिन फिर भी उसी बच्चे को उठाते हैं बार बार टीचर। तो ये क्या होता है? जजमेंट और प्रोपेसिव सैंपलिंग। कभी कभी ऐसे भी होता है कि क्लास में सिर्फ इंटेलिजेंट बच्चे को उठाया जाता है, क्योंकि टीचर को लगता है कि अगर उससे पूछूंगा तो वो आंसर देगा, बाकी से पूछूंगा तो वो आंसर नहीं देगा। इस टाइप को सैंपलिंग को क्या बोलते हैं? जजमेंट और प्रोपोसिव सैंपलिंग। Next sampling is a snowball sampling. Snowball. This is the method commonly used in social science when investigating hard to reach the group. Existing subjects are asked to nominate the further subject known to them, so the sample increase in size like a rolling snowball. Or existing people will ask to nominate the further people known to them, so that the sample increase in size like a rolling snowball. This method of sampling is effective when the sampling frame is difficult to identify. For example, when carrying out a survey of risk behavior among the intravenous drugs user, participant may ask to nominate the other user to interview. Hence, we have randomly chosen a person 1 for sample. Then she recommended the person 6 and person 6 recommended the person 11 and so on. यहाँ पे क्या, मैंने स्नोबॉल का मैप दिखाते वक्त या पिक्चर दिखाते वक्त मैंने क्या किया, मैंने एक आदमी को सेलेक्ट किया, उस आदमी को बोला है कि एक आदमी फर्स्ट आदमी को सेलेक्ट किया, उस आदमी को बोला कि तुम ऐसा करो, उस आदमी को बता दो। फिर उस आदमी ने क्या किया, वो तीसरा आदमी को बता दिया।
तीसरा आदमी ने क्या है, चौथा आदमी को बता दिया। इस तरीके से फर्स्ट क्या हुआ, 1 सेलेक्ट किया, 6 को सेलेक्ट किया, 11 सेलेक्ट किया, 14 सेलेक्ट किया और 19 सेलेक्ट किया। इसको अगर हम सिंपल भाषा में समझना चाहिए, जैसे आपने देखा है कि मार्केटिंग सिस्टम, जैसे मुझे किसी जगह का जानना है कि यहाँ पे ड्रग्स एडिक्ट कितने हैं, तो मैंने क्या कहा, एक ड्रग एडिक्ट को पकड़ा, बोला उसको कि अरे कि यहाँ पे कौन कौन इंसान ड्रग्स लेता है। उसने क्या किया, जाके उस इंसान को मुझे बता दे इंसान। फिर मैंने उस इंसान को पकड़ा, उसको बोला कि तुम जाके खोजो कौन कौन ड्रग्स लेता है। फिर उस इंसान ने जाके उस इंसान को खोजा, ये आदमी ड्रग्स है। फिर जो थर्ड इंसान थे उसको भी मैंने ऑप्शन दिया कि तुम जाके खोजो कौन कौन ड्रग्स ले आया। तो मेरा क्या होगा, डाटा तो कलेक्शन हो रहा है, लेकिन मैं वो थर्ड इंसान तक तो पहुंच नहीं सकता हूँ, इसलिए मैंने पहले इंसान को सेलेक्ट किया। फिर पहले इंसान ने सेलेक्ट, सेकेंड इंसान ने फिर थर्ड इंसान को सेलेक्ट किया, थर्ड इंसान ने फोर्थ इंसान को सिलेक्ट किया। इस तरह को सैम्पलिंग को बोलते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग। जैसे मार्केटिंग में क्या होता है आजकल, तो आपने सुना होगा MY, ये सब। जैसे कभी कभी इसमें भी होता है कि जैसे आप, वो बहुत सारा गेम होते हैं जिसमें कहते हैं आप किसी को भेजो, उसके बाद आपको 20 पॉइंट मिलेगा। फिर वो दूसरे को भेजेगा, उसमें आपको 5 पॉइंट मिलेगा। फिर वो दूसरे वाला फिर तीसरे को भेजेगा, उसमें आपको 2 पॉइंट मिलेगा। तो फिर तीसरे वाला चौथे को भेजेगा, उसमें आपको पॉइंट मिलेगा। तो इसे भी बोलते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग। आज मैंने जितना भी सैम्पलिंग नॉन सैम्पलिंग के बारे में डिस्कस किया है, वो कोई भी क्वेश्चन को आंसर देने के लिए 99% तक फुलफिल करेगा, क्योंकि 100% तो बोल नहीं सकते, इसलिए 99% तक फुलफिल करेगा। आप जिस टाइप का एग्जाम्पल दोगे, एक बार इसे पढ़ने के बाद आपको उस चीज को अनुभव जरूर होगा कि मैं इसको आंसर का अटेम्प्ट कर सकता हूँ। इसलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज सब्सक्राइब and press the button icons, because your subscription work as a drop of thrust of motivation in my work। आपका प्यार ही मेरे लिए एक उत्साह होगा। धन्यवाद।